गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। So we saw last time, it won't come now, just listen. Last time we saw first step, if you have written notes properly, we analyzed what are the unavoidables of life. Then we said Bhagavad Gita takes care of all the requirements of any individual in his or her life. That we saw. It provides everything. Then we saw that life, whether it is a child, whether it is a youngster, whether it is an old man, whether anybody, living life means a series of challenges, one after one, one after one, one after one. And every challenge, if challenge is so big, every challenge creates some disturbance in the body, in the mind, and also in the
intellect. है ना? Every challenge disturbs. Slightly the body is affected, slightly the mind is affected, slightly the intellect is affected. If the challenge is too big, it shakes you. Like you thought you will get 100% and you got a 0. After results are declared. तब मजा आएगा, देखना चाहिए शक्ल आपका. Challenge is too big and it impacts, you get shock physically, mentally also, you become mental, intellectually also you get confused. Same thing happened to Arjuna. He said, in Bhagavad Gita first chapter he said, we saw introduction, my bow is slipping from my hand, Gandivam samsrate hastat, and I am unable to stand. Mentally he says, because I am so much confused, my mind is not allowing me to stand now. Nacha shaknomi avasthatum. Then intellectually he said, nimittani cha pashyami. For example, you are so weak mind, cat comes, you are afraid. Somebody sneezes, you are afraid. Somebody tells some kind of a bad, by slip of tongue something happened. No problem, I think you will not fast. No. ऐसे क्या कहा? Little disturbance is enough, it shakes you. You go to temple and at that time पर्दा डाला हुआ है. भगवान का भोग लगा रहा है तो पर्दा डाला हुआ है. Immediately you feel sentimental. So जैसे भगवान देखना नहीं चाहते हमको, पर्दा डाल दिया. है ना? Become sentimental for everything. That's called intellect also. It sees everything. You become everything sentimental. Suppose you are sharpening your pencil before exam and pencil टूट गया. Then immediately you feel that अशुभम something होने वाला है. फेंक दो उसको, नया पेंसिल लाओ. Weak mind, तो गाड़ी कहीं जाने वाले हैं, पंचर हो गया, तो इमीडिएटली ये गाड़ी बदल देना, ठीक नहीं है. होता है कि नहीं? That's called intellect. Arjuna says, so he says, I am seeing bad omens everywhere. कोई bad omen है ही नहीं, स्वयं भगवान पर सामने बैठे हैं, bad omen क्या है, बेवकूफ है. You go to Gurudev and say, Gurudev, I am seeing bad omens. Then Gurudev will get doubt on himself. Am I a bad omen for you or what? That's how the mental weak. So Arjuna personality collapsed. So we say Arjuna was, we saw last time, totally his mind, body and intellect was totally ruined. So what is the Bhagavad Gita sole aim? Bhagavad Gita aim is simple. How to stitch, how to resurrect, how to construct, how to bring together the shattered personality. जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मन टुकड़ा हो गया, बुद्धि टुकड़ा हो गया और शरीर तो होने वाला है. Everything is destroyed. Such a shattered, no hope. जीवन में आशा के किरण कोई दिखाई नहीं देता. ऐसे कुछ लोग बोलते रहते हैं, पोएट्री सुनाते रहते हैं. और अजीब सी बात है, जब आदमी दुख में रहता है ना, तभी पोएट्री आ जाता है, पता नहीं कहाँ से निकलता है, कवि बन जाता है कवि. मैंने कई बार सुन रहा है. सब ठीक है, और शायरी सुनाते रहते हैं, दुखों की शायरी चुन कर, पता नहीं कहाँ कहाँ से याद आ जाते हैं. सो what happens now when entire personality, Gita, purpose of Bhagavad Gita is so beautiful, he constructed the personality. जो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया, शरीर में कमज़ोर, बुद्धि में भी कमज़ोर, मन में भी कमज़ोर हो गया और ऑलमोस्ट कोमा में चला गया, ऐसे व्यक्ति को कुछ 1-2 घंटे के बाद, जो भी है कुछ समय के बाद, उसको खड़ा कर दिया, एकदम मजबूत बना दिया. See the beauty of Bhagavad Gita. So therefore, Gurudev said, there must be something in Bhagavad Gita because of which Arjuna could stand back again and fought and won the battle ferociously. There must be something in Bhagavad Gita which is unable to, we cannot know, we cannot simply throw it out. There is nothing karke.
So, as far we are concerned now, we are bodily weak, mentally also frail, intellectually impaired. ठीक से काम नहीं करता बुद्धि. So, what is central theme of Bhagavad Gita? What we saw? Active resistance to evil, both within and without. प्रतिघटन करना. Remember friends, ahimsa paramo dharma, but ahimsa cannot be the national character. Remember this. Whole country goes to dogs. If the character of a nation is ahimsa, ahimsa is only dharma for bhikshu, for mendicants, for tapasvis, for brahmanas, not for kshatriya. Kshatriya dharma yuddha is dharma. So ahimsa, I will not hurt anybody, harm anybody, slap anybody. Let people, everybody, let every Bangladesh loot, Sri Lanka loot, Pakistan loot, America bomb us, China also bomb us. We will sit like that. It can't be a national character. That's what Gita says. Yudhyasva, yudhyasva, yudhyasva. Fight it out, fight it out, fight it out. Individually, you may be great, sadhu. If you are a tapasvi, yes. But I cannot tell a soldier standing there in the army, ahimsa paramo dharma. वो बंदूक लेके आ रहे और अहिंसा परमो धर्मः, इधर ही बैठ जाओ, मरो, शरीर त्याग देना. That is the wrong thing. So our country had gone to dogs only because of misunderstanding of this simple the truths. Like for example, ahimsa misunderstood, maya misunderstood. So certain things have gone into wrongly in our head. So Bhagavan Krishna says, active resistance to evil is the central theme of Bhagavad Gita. Active resistance to evil, but be intelligent enough. So 10 गुंडे लोग आए, तुम अकेले हो, active resistance to evil, नहीं, you will be killed. So समझदारी से व्यवहार करना. That is the beauty. So it's a science of life. Bhagavad Gita applicable to all people at all times in all places. Okay. And what does it give us? It gives us material prosperity also. How to progress in life, Bhagavad Gita gives us. Society, country, individual, family, how to prosper materially, also given by Bhagavad Gita. And it strengthens the value system. So many values are studied in Bhagavad Gita and also guides individuals towards greater success in life. So, what is that Gita provides us? We saw last time. I am repeating everything. Every time I will not repeat like this. A book of management. We saw Gita also a guide to the indecisive people who cannot decide anything. Gita will help you decision making. And a motivational force for the doubting people who always doubt everything. Gita motivates you and not to doubt and go ahead. Stimulator for thinkers. If you are a good thinker, it will stimulate your thinking, make you a greater thinker. A road map for life trekkers. जीवन में जो आगे चलने वालों के लिए एक बड़ा एक मैप है, मैप मार्गदर्शक. और एक कुशन फॉर इमोशनली डिरेल्ड पीपल, इमोशनली वीक पीपल. इट्स अ क्वेश्चनिंग and it's a light for the seekers of truth. It's a light, it's a beautiful light. Gita transforms and makes you realize the truth. So this is what Bhagavad Gita provides. And we saw last time also, last time the first introduction talk, I gave you this beautiful thing that the 3 components of progress of life. One is karma, other is jnana and other is bhakti. Technical words. Otherwise, action is required, knowledge is required, and also devotion is required. If you are not devoted to your studies, your life, your job, and you will not act, you don't have knowledge about it, if these 3 are not there, you are a useless fellow. Suppose knowledge is there, but you will not act in the life and no devotion to work, no use. Think about it. You are always acting not with knowledge and devotion, that action is ruinous. You are only devoted, but neither action nor knowledge, simply saying I am devoted. Devoted to what? Laziness. There is no action, no knowledge.
So in this life, we must cultivate three components. One is you must have knowledge of everything. Whatever your duties are, whatever your roles are, whatever your everything, you must have knowledge also. You must also have the ability to act, to work hard, and also you must have devotion to whatever that you are doing, you are supposed to do. If you have devotion, these three together, three components together makes you progress in life. Okay? That's one thing. So, what is ultimately Bhagavad Gita, we said last time, it teaches us very important right kind of perseverance. Perseverance माने लगे रहना, लगे रहो मुन्ना भाई. तो लगे रहना, कैसे लगे रहना? मैं दारू पीता रहूँगा, लगे रहे, नेगेटिव लगे रहना, वेरी डेंजरस. सो लगे रहो, नो. Right kind of perseverance, where we should be dedicated our life, where we should not. That लगे रहना, perseverance means what? Ability to stick to it, any work consistently. That is called Bhagavad Gita teaches us how to persevere. Perseverance. Okay? Both secular or spiritual. Now, that was the introduction, which I gave you last time exhaustively. Now I have to go to the 18 keys of Bhagavad Gita, which I have to start today. Is it not? पानी नहीं है इधर. 18 keys. Now each Gita, each chapter for youth only, especially for youth. Especially for youth means not बूढ़े लोग काम के नहीं है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है. But it is, you can use it more for you. Youth can use it more. For example, जिसका कमर में प्रॉब्लम है, उसको आप जाके पद्मासन सिखा रहे हो, क्यों? तो क्या फायदा है? सोचो. कमर ही ठीक नहीं बेचारा, उसको पद्मासन क्या है? तो जिसका पैर नहीं है उसके पास जाके सिखा रहे हो स्विमिंग, ठीक है. जिसका आंग ठीक से दिखता नहीं, उनको जाके बोला कि एक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करो अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट? So, ये सब, the younger you are, more you can use it. Older you are, applicability इतना कर नहीं सकते, बहुत सारे problems हैं. Elders, Gurudev says, elders will have so many problems. That is, after 30-35 years, so many problems. So you have to attend. Gurudev says, parents are old, they have to be looked after, and wife and children, and then money, and then the house, and so many complications. Lucky the youth are not married, so they are free from all the complications. This is the time for you to learn, grow, understand, and this is the time to contribute, and this is the time to grow. Otherwise, सुबह से लेकर के so much of work is there, involved. इनको देखना, उनको देखना. ऑफिस जाते समय छोटा बच्चा बोलता है, then wife will say, ए बच्चा को ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाओ. लेके जाएगा, वहाँ पे कुछ इसको कुछ ठीक हो जाता, डॉक्टर बोलता कुछ है ही नहीं ठीक इसको. वो सब टेढ़े आंख से हंसते रहते बच्चा. तो घर लाने के बाद अच्छी बोलता है. Ultimately, the daddy gets angry, gives him one. बदमाशी वहाँ करते हो या घर पे करते हो, डॉक्टर के पास ले तो कुछ नहीं करता. बीमार क्या है तेरे को? अच्छी, यही बीमार है. What is the बीमार? I don't want you to go to office. Play with me. That's it. ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ होते रहते हैं. You get disturbed. So therefore, Gurudev says, youth, they have their own advantages. है कि नहीं? You are not taking that advantage. But you don't have to think about what is the monthly income, खर्चा कैसा है,
कैसे संभालना घर, व्हाट इज नेक्स्ट मंथ एक्सपेंडिचर, कागज़ लेके, पेन लेके, सफाई वालों को इतना, पेपर वालों को इतना, इंटरनेट कनेक्शन इतना, मोबाइल फ़ोन इतना, घर का भाड़ा इतना, घर का रिपेयर वर्क इतना। और लिखते हैं कि आप लोग कोई काम धंधा नहीं तुम्हारे पास, वो सब पप्पा मम्मी लिखते रहते बेचारे। क्या है, अरे अगले महीने इनकम टैक्स भी भरना है, चला जाता है सारा सैलरी, चलाना मुश्किल है कि नहीं। बड़े बड़े कंपनी है तो भी क्या है, वहाँ पे हिसाब 1 करोड़ में होता है, करोड़ 2 करोड़ इधर से आना है, 3 करोड़ उधर पे करना है। 2 करोड़ जो आता है वो नहीं देता, 3 करोड़ जो लेने के लिए दिमाग में बैठ जाते गर्दन पे, निकाल 3 करोड़ निकाल। 3 करोड़ क्या यार, 3 रुपये भी नहीं है मेरे पास। क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, डेबिट कार्ड बंद हो गया, सब मर गए, अब मैं एक जिंदा हूँ। So youth is a time where you don't have such complications, so you have to use it. So more this beautiful vidya, what is the use of learning how to live life intelligently at the age of 92? At the age of 92 क्या पढ़ाना है? How to die peacefully, है कि नहीं? सब भूल जाओ दादाजी, उसका परेशान, सब वैसे भूल रहे हैं, वही परेशान है उनको, मैं क्यों भूलते जा रहा हूँ। अरे भैया भगवान आपको आशीर्वाद दिया, सब भुला दिया, भूल जाओ, अपने आप को याद करते करते मर जाओ। प्रॉब्लम। सो यूथ के लिए बहुत फायदा है, इज इट नॉट? सपोज यू स्टार्टेड राइटिंग IAS एग्जाम एट 29-30, 32 कट ऑफ, 35 कट ऑफ, 35, 32-33 you started writing. What is the use? जो 20 साल से शुरू कर रहे हैं काम, as soon as the complete degree started writing exams, सर्विस का भी फायदा होता है कि नहीं? और कॉन्संट्रेशन भी बढ़ता है, मेमोरी पावर इज शार्प। सो बचपन का मैंने यूथ स्टेज का जो भी है, युवा अवस्था का फायदा उठाना चाहिए। मगर आप लोग बेवकूफ़ लोग हैं, फ़ायदा उठाते नहीं। सब बोलते 60 साल के बाद हम गीता पढ़ेंगे, मरने से पहले पढ़ो, थकिया के रूप पे सिर पे लगा के नीचे और मर जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर एज की एम्पावर्स यू विद स्पेशल एबिलिटी। तो पहला अध्याय का थोड़ा सा विषय तो देख लिया हमने, फिर भी हम देखेंगे व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, की इन फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, ब्यूटिफुल भगवद गीता है। फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट सो मेनी थिंग्स आर देयर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द श्लोकास एंड एवरीथिंग, बट कंटेंट क्या है देखते हैं। देखिए 3 चीज इसमें, एक है प्रॉब्लम, दूसरी चीज क्या है सिम्टम्स, थर्ड इज रेमेडी। है कि नहीं? पहले समस्या क्या है, फिर इसका सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है रोगी का, अब इलाज क्या है। 3 चीज चाहिए कि नहीं? और पहले प्रॉब्लम ही पता नहीं, बट सिम्टम्स बहुत जारी है, और सिम्टम्स का प्रॉब्लम नहीं पता है, उसको बोलते हैं पायरेक्सिया, फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन। PYREXIA है, पायरेक्सिया मीनिंग फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन। फीवर तो है, कारण बताने लग रहा है, प्रॉब्लम है। मेडिकल में सिम्टम दिखाई देता है कई बार, और समस्या क्या है, कहाँ है, वो तो पता नहीं लगता। सो गुरुदेव सेज सच पेशेंट्स आर शेयर्ड बाय एवरी डॉक्टर, दे शेयर्ड बाय, सो एवरीबडी विल मिल्क फ्रॉम द पेशेंट। ENT के पास जाओ, ENT चेक करेगा, 2000 रुपया ले लिया। मेरे को कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, सब लोग दे शेयर द पेशेंट। बेचारा पेशेंट हर जगह जाके पैसा देते, आखिर में पता लगता है कि कुछ हाई प्रॉब्लम है ही नहीं। डॉक्टर्स शेयर द पेशेंट,
It's called cooperative endeavor. No selfishness. What you get, you should share. Gurudev says that is the thing. So if you don't know the problem, symptoms are so known, remedy is impossible. प्रॉब्लम तो पता नहीं लगता है. देखिए, इसीलिए अभी प्रॉब्लम देखेंगे. अब व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्जुन? अर्जुन वॉज डेल्यूटेड. डेल्यूटेड माने, देखिए बेटा, डेल्यूजन मीन्स इसका कारण अंदर है. यू आर डेल्यूटेड माने सब ठीक है, बट यूर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज क्लाउडेड. यू आर डेल्यूटेड इनसाइड. एक चीज को देख करके दूसरे समझ रहे हो, अच्छा व्यक्ति को देख करके बुरा समझ रहे हो, तुम्हारा डेल्यूशन है. गुरु कुछ से कुछ कह देता है तो यू थिंक दैट गुरु इज बैड. भाड़ में जाओ, गुरु को जाने दो. एंड गुरु ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट है. वो बोलता है दुनिया को भाड़ में जाने देते हैं. गुरु को लेने देना कुछ है ही नहीं ना. तो डेल्यूजन मीन्स व्हाट? यूर प्रोजेक्शन. तो अपने दिमाग के प्रॉब्लम है. तो इलाज क्या करना चाहिए? पिटाई करना चाहिए. गुरु नहीं करेगा पिटाई, भगवान करेगा ऊपर से, ईश्वर. तो प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 देखिए, वंस यू आर डेल्यूटेड, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? मिसरिप्रेजेंटिंग वन सेल्फ. भाई आप बताओ, आपकी जो आइडेंटिटी है मिसरिप्रेजेंटिंग, हाउ डू यू रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट माने यू नो रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, कहीं किसी के पास गए हो आप, हाउ डू रिप्रेजेंट? सपोज डॉक्टर के पास जाके गए हो, तो फिर यू शुड नो. एक बार मैंने डॉक्टर के पास गया, एक स्वामी जी के लिए. वो स्वामी जी का वो हार्ट ऑपरेशन होना था, उस स्वामी जी का. तो मैं भी डॉक्टर के साथ पास गया था, स्वामी जी के साथ नहीं, और किसी व्यक्ति के साथ जिन्होंने मुझे लेके गया कि उनके उस स्वामी जी के बारे में पूछने के लिए. तो हमने रिपोर्ट, बड़े डॉक्टर है वो, तो मैं गया तो उन्होंने, बड़ी दिल्ली में बहुत फेमस है वो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोथोरैसिक सर्जन. तो मैंने भी ऐसे गया बस टू नो अबाउट दैट स्वामी. वो मुझे देखते ही वो एक्सरे पर देखा, स्वामी जी कोई बात नहीं, कर देंगे आपको. बोला मुझे को नहीं यार, उसको दूसरा स्वामी है, मेरे दिल तो ठीक है. स्वामी कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, मैं कल खरीद लेंगे, ऑपरेशन 2-3 हफ्ते के बाद कर देंगे आपको. बोला सर ये मेरा नहीं है, दूसरे स्वामी जी का है. तो दूसरे स्वामी जी का है, अच्छा वेरी सॉरी. बोले यू वॉज रेडी टू ऑपरेट ऑन माई हार्ट. So if I represent myself, Baba, I am an attendant, I am only a friend of other Swami, I am known that, so you just have go. So ये representation correct होनी चाहिए, है कि नहीं? अर्जुना went to युद्ध as a representation. मान देखिए, आप पप्पा से बात करते हैं, what is the representation? You represent only a son or a daughter, not a challenger. पापा दिखाओ कितना मजल है आपका. बेचारा पापा बूढ़ा हो गया और ये करके आ रहा है, दिखाओ. तो रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, कल सुना गुरुदेव का कहानी, आप कल देखा ना हमने. द लायन वेंट टू द टीचर एंड सेड आई विल ईट यू. मिसरिप्रेजेंटेड और नॉट? फिर गुरु ने क्या किया, उसको फिर दोबारा चूहा बना दिया. तो जितने भी आप बड़े हो, गुरु के सामने झुक के रहना चाहिए. रिमेंबर, ए गुरु विल नेवर would be dragged himself to the cheap third rate discussions with anybody. Guru is always tough. So you should represent. Arjuna could not represent himself. Why? भैया तुम युद्ध करने गए, हाँ, एज ए वॉरियर, यस, एज ए क्षत्रिय, यस, बट एज यू आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? आई एम ए सन ऑफ सो एंड सो, ग्रैंड सन ऑफ सो एंड सो, स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो. ये गलत हो गए कि नहीं? भैया आप युद्ध करने आए हो, क्षत्रिय बनकर आए हो. योर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर आर्मी, योर ब्रदर्स.
But now you are asking, no, 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 I am not a warrior, I am a son of so and so, grandson of so and so, my gurus are Bhishmacharya and Dronacharya, and ये है वो है, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका मामा हूँ. हो गए, गड़बड़ हो गई कि नहीं? तो I should represent myself always properly, is it not? You are an ambassador of some country representing India, Indian ambassador to America. So then you should represent, no, as an ambassador. You don't become cheap there. दारू पी के सो गया, सुला दे, वहाँ पे गिर गया दारू पी के. Ambassador गिर पड़ा. Indian ambassador overdrank and collapsed in the party. That too, and vomited on Obama. क्या बदनाम है? You represent properly. Is it not? Your behavior. You should represent properly. Ambassador, yes, I am representing a country. मैं दारू पी के गिर गया ओबामा के ऊपर. India drank and fell upon. इंडिया का नाम आता आएगा. ये इसका ये बेवकूफ नहीं आएगा. इंडिया, हाँ, इंडिया ड्रॉन. So therefore, represent Arjuna was misrepresented by himself. He thought that I am so and so. तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? डेल्यूजन हो गया, अपने आप को भूल गया और अपने आप को गलत फहमी हो गई. आप अपने बारे में गलत सोचने लगा और अपने आप को गलत समझने लगा. गड़बड़ हो जाएगा. देखिए, कुछ बोलते स्वामी जी चलो आप भी चलो डिस्को क्लब, हम नाचते हैं आप देखते हैं. अब मैं अंदर नाचूंगा नहीं, मगर बाहर से कई लोग देखे कि स्वामी जी अंदर जा रहे डिस्को क्लब में, फिर अखबार में आ जाएगा स्वामी चिद्रूपानंद इन डिस्को क्लब. एक बार मैंने दारू कंपनी में बात करने गया, यूबी नो, वहाँ पे एक बार किंगफिशर, दे कॉल्ड मी फॉर स्पिरिचुअल टॉक. बड़ी मज़ेदार बात है कि वहाँ पे मैं, डोंट आस्क मी विच प्लेस आई वेंट फैक्ट्री. वहाँ पे रिसेप्शन में भी वेलकम, हर जगह बॉयड वेराइटीज ऑफ बॉटल्स एंड प्रोडक्ट्स ओनली डिस्प्लेड देयर. कोई भगवान का तस्वीर और कुछ है नहीं, सब बहुत किंग साइज, ये साइज, नॉर्मल साइज, सब अलग अलग. तो आप कभी किसी पीने वाले बहुत है, मगर कोई फैक्ट्री के अंदर जाके देखा गया? मैं देखा हूँ, मैं नहीं पीता हूँ. तो अंदर गया, कितने लोग आके मुझसे बोले कि स्वामी जी हम इधर तो काम करते हैं, प्रॉमिस हम बिल्कुल नहीं पीते. मैंने बोला आप क्यों, मुझसे क्यों बोल रहे हो? मैंने पूछा क्या पिएंगे क्या करें? नहीं स्वामी जी मैं तो वेरी हॉनेस्ट हूँ, मैं पीता ही नहीं. इधर काम तो कर रहे हैं, देखो हाउ मच गिल्ट दे हैव. जगह बड़ा लेक्चर दे के आया हूँ टीम वर्क के बारे में, हाउ टू प्रोड्यूस मोर. क्या दारू? सो द डेफिशिएंसी सो दैट यू कैन. आप हमारा प्यारा तो देखो. तो एनीवे, सो यू शुड बी रिप्रेजेंटेड. सो अर्जुना का प्रॉब्लम क्या था? मिस रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ. डेल्यूजन, मोह में पड़ गया हो, ये पहले प्रॉब्लम है. दूसरा, मिसरीडिंग द सिचुएशन. लाइक यू पीपल अंडर डेल्यूजन मिसरीड द क्वेश्चन. करते हैं कि नहीं? क्वेश्चन इतना थोड़ा सा घुमा दिया, बस आउट. यू रीड समथिंग एल्स, यू राइट समथिंग एल्स, गॉन. सो मिसरीडिंग द सिचुएशन. आप सुबह से लेकर के हर चीज को ठीक ठाक पढ़कर, माने समझकर व्यवहार करना है. If you misread some situation, you will be in trouble. So what are the facts are there? भैया तुम युद्ध करने आए हो, you are representing a country, you are representing a kingdom, you are representing your brothers, but you start misreading the facts and you don't know what to do. Fact क्या है? Duryodhana doesn't love you, they hate you. You are understanding that बेचारे बच्चा है, छोड़ दो.
जहां पे करुणा नहीं दिखाना चाहिए वहीं करुणा दिखाना चाहते हो तुम. So you start reading, misreading everything. Like for example, under delusion, you read traffic also misleading or not? स्वामी जी गुरुदेव कहते थे कि देखिए एक आदमी को एक्सीडेंट हुआ, जाके सीधा गाड़ी को लेकर के एक पेड़ को टकरा गया. बेचारा उसको कुछ ज़्यादा नहीं हुआ नुकसान, कुछ तो ठीक थे, पर गाड़ी पहला जो बॉनेट है सब क्रश हो गया. वो तो पेड़ बोला कि मैं मजबूत हूँ, तू मजबूत है, देव आ जाओ देखेंगे, खड़े खड़े रहे. क्रश्ड कार. फिर उसको बाहर स्वामी जी सेस, गुरुदेव सेस, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू डू दैट. He said, Swamiji, 3 times I told the tree, move, move, move. He didn't move. What to do? Why? पी के चला रहा है गाड़ी और कहने लगा पेड़ को कि बाजू हटो, बाजू हटो. This is called misreading the fact. Fact is the tree doesn't move. मेरे पास एक ब्यूटीफुल क्लिपिंग भी है. एक यूएस मंटनो शिप, पता नहीं दिखाया कि नहीं आपको, वहाँ पे एक शिप जा रहा है तो फिर इमीडिएटली उनको दूसरे जगह से मैसेज आता है कि यू डाइवर्ट यूर कोर्स 15 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट. कैप्टन को मिला, शिप somebody वाइस कैप्टन को. नो दिस इज मोन्चना, यूएस मोन्चना, लार्जेस्ट शिप एंड ऑल दैट, यू चेंज योर कोर्स, वी विल नॉट चेंज. द अदर मैन सेड अगेन सेड, नो सर वी कैन नॉट मूव, यू प्लीज चेंज द कोर्स. फिर कैप्टन आ गया, गुस्सा है कैप्टन को. दिस इज यूएस मोन्चना, लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू, यू चेंज योर कोर्स. ओवर. वहां से आवाज आई, आई एम लाइट हाउस मेट, कॉल इज यूअर्स. आई एम लाइट हाउस, कॉल इज यूअर्स. लाइट हाउस कैनॉट मूव फॉर यूएस मेंटेन, बड़े बड़े लार्जेस्ट बाढ़ में जाओ, सब ड्राउन देर ओनली. सी, मिसरीडिंग दी फैक्ट्स. कुछ लोगों की आदत है बोलने से पहले ही जवाब दे देते हैं. व्हाट इज यूर, सर आई स्टे देयर. किसने पूछा, क्या पूछा? डिड आई आस्क अबाउट स्टे? No, but you are asking some question. No, I thought so like that, sir. Sorry, sir. No, you ask another question. What is your... Sir, I will tell you. They are called diarrhea patients. So, misreading the situation. Second problem. ठीक है? जब मोह में पड़ गए, आपको सोचता नहीं क्या बोलना है, क्या बात नहीं करना, क्या बात करना है. तुम्हारा आंखों का नजर का प्रॉब्लम है ना. मिसकैलकुलेटिंग वंस स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, यू स्टार्ट मिसकैलकुलेटिंग योरसेल्फ. देखिए जहां पे सही ताकत है, आप कर सकते हैं, वहां आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, ये काम मेरे द्वारा करने योग्य नहीं है, मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, मैं हार जाऊंगा. और जहां पे बिल्कुल ताकत नहीं है, करना ही नहीं चाहिए था आपको, वहां आप सोचने लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं. भाई जहां पे ताकत है वहां कहने लगा कि ताकत नहीं सोचा, जहां पे बिल्कुल नहीं है वहां आपने सोचने लगा कि मैं कर सकता हूं. इट इज कॉल्ड मिसकैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज. बच्चे भी है ना, छोटे छोटे बच्चे घर में भी, 6 साल का लड़का, 5 साल का लड़का बोलते हैं कि मैं भी उठा देता हूँ बकेट पानी, मैं उठाता, मम्मी जा, मैं उठाता. तो मम्मी बोलती है नहीं बाजू हटो, बाजू हटो. कितने चिल्लाना है, बकेट छोड़ देने का उधर. उठाओ बेटा उठाओ, उधर से लाके उधर लाओ. बड़ा बकेट है, ही इज नॉट इवन साइज ऑफ द बकेट. नो व्हाट कैन ही लिफ्ट? मिसकैलकुलेटिंग वन स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज. इफ यू आर डेल्यूड माने अंदर है, मोह में पड़ गया, क्लाउडेड हो गया, पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है आपको आपके भीतर अंदर, बिकॉज ऑफ दिस 3. व्हाट इज द फर्स्ट वन? मिस रिप्रेजेंटिंग. सेकेंड वन मिस रीडिंग. थर्ड वन मिस कैलकुलेटिंग. सम स्पोर्ट्स पीपल miscalculate and they lose their games, and all of you miscalculate.
पता है एग्जाम से पहले ये सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल में 2 दिन में खत्म कर देता हूं। 2 दिन नहीं, वो 20 दिन लगेगा। ओवर एरोगेंस, मिसकैलकुलेशन, तो ये काम हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट वर्क खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा, बस स्वामी जी बस शुरू तो करना है, बस शुरू करने हो गया, शुरू करो, होता ही नहीं। आप सोचते हैं कि नहीं बस 1 दिन में हो जाएगा, मैथमेटिक्स 15 दिन में खत्म कर दूंगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, वो 2 दिन में हो जाएगा, ये 1 महीने में हो जाएगा। करो, ट्राई करो, तब पता लगता है कि आप पहले जो पढ़े, आप 8वीं में 8वीं 7वीं में जो पढ़े वो भी भूल गए। मिसकैलकुलेटिंग वन स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। फिर क्या है? मिसलीडिंग अदर्स थ्रू जस्टिफिकेशन। वाह, ये अर्जुन ने क्या क्या बताया आपको? भगवान कृष्ण को समझा रहे थे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और भगवान को समझा, समर्थन मांग रहे भगवान से कि भगवान आप मेरा समर्थन करो, हम दोनों जाके भीख मांगेंगे। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आप तो मेरा गुरु है, मुझे सिखाओगे कैसे भीख मांगना। युद्ध से हम क्या करना है, जंगल में जाके भीख मांगेंगे। तो भगवान ने एक छापा देके बोला, अबे बेवकूफ, जंगल में खिलाने वाला कौन होता है तेरे को? जंगल में कोई गृहस्थ होता है क्या खिलाने के लिए? ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो खुद नहीं खाते, लंगोटी पहन के बैठते हैं, वो लोग तुम लोग क्या खिलाओगे? खिलाएंगे ये लोग तुमको। तो यू स्टार्टेड जस्टिफाइंग, किस लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, किस लिए मैं फेल हो गया। पीपल जस्टिफाई करते कि नहीं? क्यों फेल हो गया? स्वामी जी आपने इतना अच्छा खूबसूरत बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, मैं इसका जवाब मैं आपको दूंगा। सुनिए क्या हुआ, शुरू कहानी। इसलिए मैं फेल हो गया, बुखार आ गया। अरे बेवकूफ, बुखार कब आया तेरे को? बस स्वामी जी एग्जाम से पहले, एग्जाम के पहले आया, एग्जाम से पहले। फिर तुमको जुलाई में शुरू करना था पढ़ाई, एग्जाम से पहले शुरू करना क्या पढ़ाई? कब करना है पढ़ाई शुरू करना? आपको तैयारी जुलाई से करना है, फिर मार्च तक क्यों बैठे और बोल रहे बुखार आ गया? एंड यू जस्टिफाई अदर्स। बेचारे माँ बाप को क्या क्या की कहानी सुनाते रहते हैं बच्चे। पापा आप नहीं जानते ना, सिलेबस बदल गया, टीचर बदल गए, ये वो है, ये है, वो है, एक क्वेश्चन भी सब फेल हो गए पापा, सब फेल हो गए। सच में कह रहा हूँ, किसी को भी 35 के ऊपर आया ही नहीं। चाहे तो आप जाकर देखो, कहानी सुनाने में उस्ताद लोग हैं। मिसलीडिंग अदर्स थ्रू जस्टिफिकेशन। अर्जुन ने भी ट्राई किया, भगवान कृष्ण को पहले अध्याय में बहुत समझाया, मेरे बात सुनो कृष्णा, व्हाई डोंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? यू अंडरस्टैंड, लेट अस गो आउट, वी विल नॉट डू दिस वार, वार इज बैड, लेट अस गिव अप दिस वार, ओके? कृष्णा सेड, उधर देख रहे, हो गया तेरी कहानी। तो मिसलीडिंग अदर्स थ्रू जस्टिफिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वॉट एवर जीवन की जो फिलॉसफी है वो मिसअंडरस्टैंड कर लिया और लीडिंग टू इर्रेलेवेंट टॉक। इर्रेलेवेंट टॉक, whether it is required or not, proper or not, this is called gossip. Gossip. Swami Vivekananda said, no 3 Indian women can sit together quietly for 5 minutes. They talk gossip. And no Indian men together come out without fighting each other. Swami Vivekananda. If 3 men together, they fight each other over issues, perceptions, viewpoints. And 3 women, they come together, start gossip. तुमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ।
इसको कैसे बनाना है, चोंग पहले, नहीं नहीं पहले चोंग बाद में डालते हैं, अच्छा चोंग बाद में डालते हैं, ये सब बकवास रहता है सब। ये साड़ी कहाँ लिया, वो कपड़ा कहाँ मिलता है, घर कैसे सजाया, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे नानी दादी कैसी है, तुम्हारी सास क्या कह रही है आजकल। बकवास है। विथड्रॉ। अन्या वाचा विमुंचत, उपनिषद सेज गिव अप एवरी अदर टॉक, अन्या वाचा विमुंचत, एक्सेप्ट ट्रूथ। उपनिषद मास्टर सेज टू डिसाइपल, एक्सेप्ट ट्रूथ, डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। अन्या वाचा विमुंचत, गिव अप एवरी अदर टॉक and mauni bhava. So misunderstanding philosophy of life. Whatever your position, you misunderstand and you talk irrelevant talk, gappe, bakwas, third rate dialogues, and you drag everybody into controversies. Stupid third rate people. Such irrelevant talk, give up, भगवान. But delusion, ये पीछे का लाइट आ रहा है, इसे लास्ट पॉइंट दिख नहीं रहा. Misunderstanding philosophy of life. Can anybody cover that light behind? वो टेप लगाना था उधर, पूरा सिंपल दिमाग की बात है. तो वो प्रलंबी बना सब. The tape will be there, no? The packaging tape. Packaging tape will be there, no? ये नहीं बटेगा. दिमाग की बत्ती नहीं जली तो क्या करना है? क्या खाना है? इंटो. खाओ. So symptoms. अब ये क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, पूछता है सर दर्द है, कहाँ, वही पता नहीं लग रहा है. फिर डॉक्टर बेचारा सबको दिमाग से सिर से लेकर के पैर तक पूरा टेस्ट करे, बोलता है कहाँ दिमाग दर्द बताओ ना, पता नहीं. डॉक्टर साहब जब आप इधर दबा रहे हैं पैर के पास में दर्द होता है, जब पैर दबा रहे इधर दर्द होता है. माने मेरे ख्याल से सर दर्द इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एस्केपिंग यू. वेरी डिफिकल्ट. मैं सच कह रहा हूँ. इफ समबडी वांट्स टू टॉक टू यू, एड्रेस यूर मेंटली, you become intellectually and you talk on logic and reason. If I want to address logical and reason, you become emotional, sentimental and mental. That's why गुरु क्या करते हैं, सबको छोड़ देते हैं. भाई तुम काम करना है तो करो, करते रहो, नहीं तो भाड़ में जाओ. Because you are unfit to be addressed at the intellectual level and mental level. पहला अपने आप को थोड़ा सुधारो, फिर बाद में आओ, बाद में सिखाएंगे जो सिखाना है, जाओ. So misunderstanding philosophy of life leading to irrelevant talk. Symptoms देखेंगे. समझ आ रही बात अभी आपको? अर्जुन का, अर्जुन माने हम सबको क्या है नाउ? स्प्लिट पर्सनालिटी. फर्स्ट वन सिम्टम. देखिए एग्जाम के लिए ठीक से पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना तो है मगर पढ़ो नहीं हो सकता है, वो नहीं पा रहा है. तो जानते हैं कि कम से कम पढ़ना है, मानते हैं कि नहीं? अब मैं तो मानता हूं पढ़ना है ना, को पढ़ना है, फिर पढ़ो, नहीं हो पा रहा है. इट्स कॉल्ड स्प्लिट पर्सनैलिटी. कभी ये कभी वो. बाहर बड़े प्रेम दिखाते हैं, अंदर लोग स्कॉर्पियन. और बाहर स्कॉर्पियन, अंदर प्रेमी प्रेम. वो जानबूझ कर दिखा दे रहे तो बढ़िया है, वो महात्मा लोग बन गए हैं. बट यू डोंट नो व्हाट यू आर. स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गया. कभी इधर कभी उधर, इधर ऐसा उधर ऐसा, पता नहीं.
सो अर्जुना ऑल्सो स्प्लिट हो गया माइंड, माइंड एंड इंटेलेक्ट स्प्लिट हो गया। वन साइड इमोशंस, वन साइड इंटेलेक्ट। प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है क्या? हिस्टीरिया। मैंने व्हाट इज हिस्टीरिया? टॉको टॉक, टॉको टॉक, टॉको टॉक, टॉको टॉक मीन्स talking, talking, talking. Whatever you are doing, hysteria patient is same thing you repeat again and again and constantly. And everybody, some old people are like that. कोई भी उनके पास चले जाता है ना, वही कहानी शुरू करते हैं। ओल्ड पीपल आर देयर। बस मेरे 5 बच्चे हैं, शुरू करते हैं। माँ जी मैंने कल सुना है, कल थे आप, कल मेरे भाषण सुन लिया? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, फिर सुन लेना। फिर सुना देते हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, कोई भी आते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, बड़े वाला उधर है, दूसरा उधर है, तीसरा इधर है, कोई मुझे क्या ख्याल नहीं रखता, मैं ऐसी हूँ, स्थिति खराब है, क्या करें, जीवन में ऐसे ही है। वो सुनना पड़ता है। जो पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन बेटा थोड़ा खत पढ़ के सुनाओ ना, तो वो पढ़े सुना दिया। पानी चाहिए? नहीं पानी नहीं चाहिए, पी लेना कोई बात नहीं, मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ। पोस्टमैन का खराब हो गया काम पूरा, सत्यानाश। ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में कि दे स्टार्ट टॉकिंग नॉनसेंस और डिजीज्ड माइंड pour out everything on everybody. You know what is hysteria? The hysteria in a initial stage is called gossip. Be careful. कोई भी आया बस ले बच्चे स्मॉल चिल्ड्रन शो सेम थिंग दे टॉक अगेन एंड अगेन. एनीबडी कम्स वो हमने दिखा देता है, कल ना क्या हुआ ना देखो ना. वो अंकुल चला गया, दूसरा अंकुल है, कल ना क्या हुआ ना देखो मेरे क्या हुआ. तो तीसरा अंकुल है, कल ना पता है क्या हुआ. Hysteria patients. Talking, disease talk. Third one, loss of clarity. But I don't know what is good for me, tells Arjuna. Nahi shreyaha anupashyami, he says. Nacha shreyo anupashyami, meaning, hey Krishna, I am unable to see what is good for me. सीधे कहाँ तक बिगड़ गया आदमी. मेरे लिए क्या है मैं अभी पता नहीं लग रहा है, मुझे ही पता नहीं लगता है. मेरे लिए क्या है, अच्छी बात क्या है, मेरे लिए कौन सी चीज़ ऐसी है कि मेरे लिए मेरी भलाई के लिए काम आएगा, बताओ ना. आई लॉस्ट माई क्लैरिटी. स्पेशली आप लोग भी, बच्चे भी, यूथ ऑल्सो नो, एवरी 12th के बाद क्लैरिटी खो जाते हैं. कहाँ करना है, क्या करना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कौन सा ग्रुप लेना है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. सुबह समझता हूँ कि इंजीनियर बनना है, दोपहर को मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर बनना है, रात को सोचता हूँ कि तबला प्लेयर बनना है. क्लैरिटी. पहले से मुझे यही चाहिए, क्लियर कट, यस. दैट क्लैरिटी इज नॉट देयर, यू लूज क्लैरिटी. देन मेंटल इम्बैलेंस. क्या होता है, आई डोंट नो वेदर वी शुड विन और लेट देम विन. पागल है क्या. देखो अर्जुन ने क्या कहा. अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, कृष्णा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उनके हाथ से, उनके हाथों में मरकर मैंने हार कर मरे, या नहीं तो हम उनको जीते, या तो वे उनको हम जीते, या हमको वो जीते. पता नहीं कौन किसको जीतना है. आप किस लिए आए हैं युद्ध के लिए? हम जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए आए हैं इधर? ऐसा बोलता है अर्जुन. देखिए, इसलिए पर्पस भूल जाना, भूल गए तो गया. आप चिन्मय मिशन में आए हैं, ये पर्पस यू फॉरगेट. पर्पस फॉरगेट हो गया तो गया. हम मंदिर में गए, मंदिर में किस लिए गए? भगवान से बात करना. फिर मोबाइल में क्यों बात करते हो?
मोबाइल बंद करके अंदर जाना। मंदिर में किस लिए जा रहे बताओ? भगवान को प्रार्थना करने। और काटते समय भी ओम गुरुदेव, ओम जय हनुमान जी, सच्चे साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। हेलो मैं बाबा जी के मंदिर में हूँ। और बाबा जी आपका प्रार्थना सुनना है, आपको आशीर्वाद देना है। वो कैसे देंगे आशीर्वाद? अच्छा, आप पढ़ाई के लिए कमरे में चले जाते हैं। जब पढ़ाई के लिए कमरे में चले जाते हैं तो फिर पढ़ाई के लिए गए ना, हाँ जी, तो फिर मोबाइल क्यों साथ में लेके जाना? गप्पे क्यों मारना? नो, पढ़ाई प्लस गप्पे। कोई मेडिटेशन करते समय सामने में मोबाइल फोन रखा, मेडिटेशन, ओम मैं मेडिटेशन में हूं, डोंट डिस्टर्ब नाउ। पागल है। देखिए, और एक डॉक्टर ने, सर्जन ने, वो मोबाइल फोन अपना भूल गया पेट में किसी का। वो घंटी बज रही थी, बेचारा उधर रख दिया अंदर, ऊपर सिला दिया। बाद में वो बंट बजने लगे अंदर, बाद में कोई कोई करके, सर कुछ हो रहा है, अंदर बज रही है। क्या पागलपना है। सो मेंटल इम्बैलेंस। देखिए कितने प्रॉब्लम। फिर लास्ट में ट्रेम्बलिंग विथ फियर, लॉस ऑफ ग्रिप, सब चला। ये सब प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है। प्रॉब्लम मैंने बोल दिया, मिस रिप्रेजेंटिंग, मिस रीडिंग, सो मेनी थिंग्स। सिम्टम्स क्या है? पढ़ो एक बार, अच्छा लगता है पढ़ने में। देखो एक बार बीमारियां पढ़ो। हाँ 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 हाँ, फियर एंड लॉस ऑफ फिजिकल ग्रिप। वो कुछ बीमारी होता है, पार्किंसन डिजीज। और ये हाथ भी कांपता है, तो ये हाथ से ये हाथ पकड़ो, दोनों कांपते हैं, तो क्या फायदा है? पार्किंसन डिजीज, लाइक मेंटल पार्किंसन, ट्रेम्बलिंग एंड लॉस ऑफ फिजिकल ग्रिप, sweating, toiling, fumbling, stammering, fumbling. ये प्रॉब्लम। रेमेडी बताओ? ऐसे बीमारी लोग हो, क्या रेमेडी है? फर्स्ट की आपको ये आंसर रेमेडी मिल गया जीवन में, तो देखो ये रेमेडी ना दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक और से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कंप्लेंट्स, आपने सुना? कंप्लेंट्स माने जैसे डॉक्टर बोलता है उससे अनुसार पेशेंट हर समय पे दवा लेता है। डिसिप्लिन, समय पे लेना है, ले गोली खाना है, गोली खा लिया, टॉनिक पीनी है, टॉनिक पीनी है, ये चेक कराने है, करा लिया। माने जैसे डॉक्टर बोलता है उसी तरफ बिल्कुल 100% फॉलो करने वाले जो पेशेंट है, मरीज है, उसको हम कहते हैं पेशेंट कंप्लेंट्स मरीज में ज़्यादा है। माने 100% पेशेंट कंप्लेंट्स, डॉक्टर खुश हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता है ये नहीं खाना चाहिए तो बंद कर देते हैं, समय पे सोना है तो सो जाते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते वैसे करते हैं। ठीक है, एक हो गया। माने पेशेंट की ओर से डॉक्टर के प्रति फुल कोऑपरेशन। मगर वो डॉक्टर सही नहीं निकला, समझो गलत निकला, फिर क्या होगा इसका? डॉक्टर गलत तो निकला, ये गोली 3 बार खाना, पर गोली ठीक नहीं उसके लिए, बेचारा खाते रह रहा है, और सब कुछ बोलते हैं कि ठीक नहीं है, नहीं मेरा डॉक्टर बोला खाने के लिए, सो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो देयर मस्ट बी ए गुड डॉक्टर एंड ए गुड पेशेंट, देन द ट्रीटमेंट विल बी गुड। देयर शुड बी ए गुड टीचर एंड ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, लाइक अवर तपोवन महाराज एंड स्वामी चिन्मयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस एंड विवेकानंद स्वामी। They are made for each other, an ideal guru and ideal disciple, दोनों को फायदा होता है।
सो एक रेमेडी जो मैं बोलने वाला हूं, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप जबरदस्त नहीं कर सकते। आप किसी गुरु के पास जाकर गला पकड़ के तू मेरा गुरु बनो, नहीं तो गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी इन द यूनिवर्स टू बिकम योर गुरु। मैं गुरु को बना दिया, कौन से गुरु को अपनाया, किस गुरु, कौन सा गुरु को चुन लिया? डिड यू सेलेक्ट योर गुरु? गुरु शॉपिंग। इट इज अ गुरु हु शुड सेलेक्ट यू एंड यू कैन नॉट फोर्स इट। समझ में आ रही बात? तो सॉल्यूशन क्या है? व्हेन द फॉग्स ऑफ कंफ्यूजन ब्लाइंड्स आवर विजन, कोरा कोरा दिखाई नहीं देता। मैंने मेरा अनुभव बता देता हूँ। 2007 में या 6 में, पता नहीं यार मुझे, 6 में या 7 में, पता नहीं, दिसंबर पीक, दैट इज व्हाट, लास्ट 30th, 29th, 30th, 31st एंड 1st, इन दोज डेज मैं और आप जानते हैं स्वामी प्रथमेशानंद, तो वो और हम दोनों स्वामी मिलके और एक बंदा युवा केंद्र रखे, एक इंडिका गाड़ी लिया। देखिए सुनिए, हमने चला गया अमृतसर से रिवालसर लेक को पकड़कर, छोटा सा रोड है, लोमश ऋषि का आश्रम भी है वहाँ पे, रिवालसर लेक, वहाँ से गया, फिर वहाँ उसको पार करके फिर मनाली की ओर चल पड़े, मंडी से मनाली। बढ़िया है। और इतना खूब कोरा, ठंड खोरा, बाप रे। somehow we went skidding vehicle and special vehicle we took toward मनाली के बाद और ऊपर रोहतांग पास कुछ दूर तक चला गया, मजा किया, चलो आ गया, स्किडिंग मर गए करके बच गए। तो एनीवे वाइल कमिंग, जो ड्राइवर हुआ है ही नहीं, हमारे युवा केंद्र में तो ड्राइवर था, वो उसी की गाड़ी है, वही ड्राइवर है, मैं ड्राइवर हूँ, 2 ड्राइवर है। प्रथमेशानंद को बिल्कुल नहीं आते गाइडिंग ड्राइविंग। तो क्या हुआ, हम वापसी में फिर शिमला गया, शिमला से फिर चंडीगढ़, और रात को पहुंचना है हमको। हमने सोचा कि बाद 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, या रात को 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे अमृतसर। चला रहे गाड़ी, फिर रात को बहुत भूख लग रही थी, 9 o'clock 10 o'clock चंडीगढ़ पार किया, फिर जलंधर, अमृतसर। रात को इन बिटवीन suddenly patch of कोरा will come before vehicle। अब ये बढ़ते गया। रात को हमने खाया, 12 बहुत भूख लग रही थी, खा लिया। फिर मैंने आई स्टार्टेड ड्राइविंग, दिस फेलो वाज स्लीपिंग, अदर चिक, बोला बैठो। तो प्रथमेशानंद जी आगे बैठा, वो पीछे बैठा। बहुत खूब ठंड थी, इतने ठंड पूछो मत। और चलो चला रहा, और इतना खोरा कि नॉट इवन 1 inch बिफोर, 1 inch साइड, 1 inch बिहाइंड, नथिंग इज विजिबल। तो उस समय कहीं रोड कुछ है ही नहीं, वेयर वी आर ड्राइविंग वी डोंट नो। मैंने इतना एक बार खोरा भयंकर आ गया, तो फिर इमीडिएटली आई अप्लाइड सडन ब्रेक वेयर आई वाज, और पीछे से एक बड़ी गाड़ी, बस वाला रोका, दूर से आया, रुका। मैं तो उतर गया हूँ, उतरना में पता नहीं कि नीचे क्या है, पता नहीं। उतर तो गया, देखा फिर कुछ है ही नहीं। बोला कैसे चलाए गाड़ी? तो वो बस वाला आगे गया, तो लाइट लाल बत्ती जल रही थी पीछे उनकी, 2 लाइट। बोला चलो दिख रहा है, उसी को पकड़ा गाइडिंग, तो 2 लाल बत्ती, जैसे उड़ जाता है उड़ जाता है, भगवान जाने, रोड कुछ है ही नहीं, 2 लाल बत्ती। दे आर गोइंग, वी आर ड्राइविंग। एक जगह पे मेरे पीछे जो बैठा युवा केंद्र, उसको बहुत खुजली हो रहा था कि मैं चलाऊंगा। पहले रोकना कहाँ यार, तो कोई गांव जैसे आया, कोई स्ट्रीट लाइट है वहाँ को दिखाई दे रहा है, मैंने साइड पे रोका और बस चले गई। मेरे सामने, मेरे पीछे 50 गाड़ी थी, गाड़ियाँ 50, वो सब गुई चला गया। मैं उसको कर देगा, आप कहाँ जाओगे इस कोहरा में, इतने सारे गाड़ी चले गए, वो कैसे चलाओगे गाड़ी? तो once you missed it, the track gone, the guru gone, the big guru, bull guru, and guiding so many vehicles.
once you miss the bus, हमारे एक है, हमारे तेजमानंद जी गुरु जी जब संन्यास दीक्षा देते हैं, किसी को लिखा कि तुम तैयार हो जाओ, तुमको भी मैं दे रहा हूँ संन्यास दीक्षा। उसने कहा कि वो तो कुछ जवाब नहीं दिया, बोले मना कर दिया, स्वामी जी अभी नहीं है। फिर कुछ हुआ, फिर मैंने बोला यार तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरु जी दे रहे हैं तो जी संकल्प, गुरु संकल्प, टेक इट एज दीक्षा। तो फिर बोला कि ठीक है। फिर मैं लेटर लिखवाया उनसे ज़बरदस्ती, ये लिखो, कहो कि आप जानते नहीं उनको, तो लिखवाया। तो गुरुजी बोले दिस ईयर यू मिस द बस, नेक्स्ट ईयर इट विल बी गिवन टू यू। ये एक बार गुरु के साथ जब बस मिस हो गया तो गया। फिर मैंने उतरा, फिर उसको बिठाया, फिर दूसरी गाड़ी के लिए, छोटी मोटी गाड़ी, बोला चलो ठीक है, थोड़ा कम हो गया। धीरे 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 4 बजे या 4:30 बजे अमृतसर पहुंचा, इतनी ठंड में। तो when the fogs of confusion blinds our vision, leading to loss of clarity and shattered personality, the only remedy is to turn towards guidance. न जाने का आप कुएं में गिर गए, जंगल में कुएं में पड़ गए, तो फिर कहाँ क्या चिल्लाने, बस इंतजार करना है। कुछ मूवी भी है ना, कैस्टअवे मूवी इज वन मूवी, ऐसे 2-3 मूवियाँ हैं। यू आर कैस्टअवे इन आइलैंड, पता नहीं कहाँ जाना है, कब आओगे पता नहीं, क्या है पता, कुछ कोई रास्ता ही नहीं, तो बैठना बस। गाइडेंस मिला तो जियोगे, नहीं तो मरोगे, जैसे केदारनाथ में हुआ। बहुत लोग ठंड के कारण मर गए हैं, जीवित थे, बच गए अपने आप को, बाहर से बचा लिया अपने आप को। कोई पहाड़ चढ़ा, पत्थर की तरह बैठ गए, मगर वहाँ पे देखा तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते हैं, उतरना मुश्किल है, हर जगह पानी, कीचड़, पानी, पत्थर, पेड़, कुछ है, मनुष्य नहीं है, तो इंतज़ार बैठे हैं। ठंड में खाना भी नहीं मिला तो चलेगा, मगर ठंड में कई लोगों को मरना पड़ा। They were waiting for guidance, and other than guidance, there is no other way there. See that? So guidance के लिए you have to turn towards guidance. So one shop solution. ऐसे दुकान अभी तक दुनिया में नहीं आए, तेरे माल भी, तुम लोगों का माल भी काम नहीं आएगा इसमें। माल also not possible. In mall also you will not get everything. But here, one shop solution for all our life confusions is to secure a life guide. Life guide. It becomes a source for all solutions. He is the one, he is capable. Guru is capable of everything. Gurudev, Sankalpa is there, it will happen to all of us. Anything. So one solution is what? Guru. This is what Arjuna did it. Arjuna कहते भगवान कृष्ण से, Krishna, he says, and that we'll see next chapter, Arjuna says, Krishna, you are my guide, I am surrendering to you, you tell me what to do, that's it. Don't tell me, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. No, you tell me decisively, you tell me, I will implement what is good for me, you tell me. आप जैसे बोलेंगे वैसे. जब गुरुजी तेजमानंद जी 2-3 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, हार्ट ऑपरेशन, तो बड़े फेमस सर्जन थे, मिस्टर पंडा, डॉक्टर पंडा, इज ए फ्रॉम बॉम्बे. तो ये ऑपरेट ऑन मनमोहन सिंह ऑल्सो. तो उन्होंने जाके गुरुजी से पूछा, एनी क्वेश्चंस? गुरुजी सेड नो क्वेश्चंस. देन ही स्माइल्ड एंड टोल्ड, व्हेन आई आस्क्ड पीएम मनमोहन सिंह जी, ही ऑल्सो रिप्लाइड सेम वे, नो क्वेश्चंस.
That shows the maturity of the patient. मैं जिंदा आऊँगा क्या, दिल के बाद क्या होगा, अब कुछ बात नहीं करना है. That decision operation to be done. No anxiety. Once surrendered, no anxiety. युद्ध प्रकट हुआ और ये हमारे ये कोई सेवक सैनिक जा रहे हैं युद्ध करने, फिर उनसे क्या पूछ सकते क्या? Come on, fire, sir. If they fire me, that question doesn't arise. If they fire, you get fired. But I'm asking you to fire. Otherwise, I'll fire you. That question doesn't arise. So once we surrender, no questions. But surrender to Gurudev or any Guru. But don't play with Gurus. कभी सरेंडर हुआ, कभी नहीं हुआ. ठीक है? So this is the first chapter. What is the first chapter now? What is the problem? What are the symptoms? What is the remedy? So what are the problems? Misrepresenting oneself, misreading the situation, setting aside the facts, miscalculating one's strengths and abilities, misleading others through justification, misunderstanding philosophy of life, leading to irrelevant talk or prattling. And the symptoms are split personality, hysteria, loss of clarity, mental imbalance, trembling with fear, and loss of physical grip. What are the solutions? When the fogs of confusion blinds our vision, leading to loss of clarity and shattered personality, the only remedy is to turn towards guidance. One sharp solution for all our life confusions is to secure a life guide, Guru. It becomes a source of all solutions for all types of confusions. भीतर से ही आवाज़ देगा गुरु. मगर डाउट है कि ये भीतर से जो आवाज़ देता है वो गुरु है या शैतान है. अब उसके लिए कोई नहीं जवाब दे सकता. हाउ कैन आई गिव जवाब फॉर दैट? मैं तेरा गुरु बोल रहा हूँ, उसको गोली से उड़ा दो. उड़ा दिया, जेल में गया. गुरु आपने बोला, मैंने कब बोला? मैंने आपकी आवाज़ सुनी. नहीं, ये मेरी आवाज़ नहीं, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ जैसी थी. वो तो दैट डेविल ऑल्सो मिमिक्स माई मैसेज, माई वॉइस. डेविल मिमिक्स माई वॉइस. सो बी केयरफुल. ठीक है? What is key number 2 from chapter number 2? How do we discover the problem? Now, say problem, symptom, remedy, है ना? How to discover a problem? The next question. This Arjuna says, my problem is something else. He says what is his problem. That we will take up September 8th September, Sunday. Next talk, key number 2. So what is key number 1? We saw problem, symptoms, remedy. From chapter number 1. Then chapter number 2, art of problem discovery. Certain things are there. So that we will see. Chapter number 2. Chapter number 2. Because I wanted to complete each key for one day if possible. So I may take up 15-20 minutes more. 10:30 to maybe 12:15. Maybe 12:30. But doesn't matter. You can write the books, write down the notes. And what is problem number, key number 2. And what is the problem? How to discover the problem. This is what is question. Okay? Thank you. Hari Om. Om. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।